پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ مظلوم کے علاوہ کسی کی طرف سے بھی علل اعلان برا کہنے کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ ہر بات کا سننے والا اور تمام حالات کا جاننے والا ہے۔ تم کسی خیر کا اظہار کرو یا اسے مخفی رکھو یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ گناہوں کا معاف کرنے والا اور صاحب اختیار ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ پیدا نہیں کیا، خدا ان قریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ پیغمبر، یہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیجیے، تو انہوں نے موسیٰ سے بھی اس سے سنگین سوال کیا تھا۔ جب ان سے یہ کہا کہ ہمیں اللہ کو علل اعلان دکھا دیجیے، تو ان کے ظلم کی بنا پر انہیں ایک بجلی نے اپنی گرفت میں لے لیا، پھر انہوں نے ہماری نشانیوں کے آ جانے کے باوجود گوسالہ بنا لیا، تو ہم نے اس سے بھی درگزر کیا اور موسیٰ کو کھلی ہوئی دلیل عطا کر دی، اور ہم نے ان کے عہد کی خلاف ورزی کی بنا پر ان کے سروں پر کوہ طور کو بلند کر دیا، اور ان سے کہا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ان سے کہا کہ خبردار شنبے کے معاملے میں زیادتی نہ کرنا، اور ان سے بڑا سخت عہد لیا، بس ان کے عہد کو توڑ دینے، آیات خدا کے انکار کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دینے، اور یہ کہنے کی بنا پر کہ ہمارے دلوں میں فطرتاً خلاف چڑھے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا نے ان کے کفر کی بنا پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور اب چند ایک کے علاوہ کوئی ایمان نہ لائے گا، اور ان کے کفر اور مریم پر عظیم بہتان لگانے کی بنا پر اور یہ کہنے کی بنا پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا ہے اور نہ سولی دی ہے، بلکہ دوسرے کو ان کی شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ اور جن لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ سب منزل شک میں ہیں، اور کسی کو گمان کی پیروی کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا ہے، بلکہ خدا نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور خدا صاحب غلبہ اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور کوئی اہل کتاب میں ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن عیسیٰ اس کے گواہ ہوں گے۔ بس ان یہودیوں کے ظلم کی بنا پر ہم نے جن پاکیزہ چیزوں کو حلال کر رکھا تھا ان پر حرام کر دیا، اور ان کے بہت سے لوگوں کو راہ خدا سے روکنے کی بنا پر اور سود لینے کی بنا پر جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کی بنا پر، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب مہیا کیا ہے۔ لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں رسوخ رکھنے والے اور ایمان لانے والے ہیں وہ ان سب پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل ہوا ہے یا تم سے پہلے نازل ہو چکا ہے، اور بالخصوص نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہم ان قریب ان سب کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی نازل کی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف وحی کی تھی، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی ہے، اور داؤد کو زبور عطا کی ہے۔ کچھ رسول ہیں جن کے قصے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر چکے ہیں، اور کچھ رسول ہیں جن کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا ہے، اور اللہ نے موسیٰ سے باقاعدہ گفتگو کی ہے۔ یہ سارے رسول بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اس لیے بھیجے گئے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد انسان کی حجت خدا پر قائم نہ ہونے پائے، اور خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ یہ مانے یا نہ مانے، لیکن خدا نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے وہ خود اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، اور خدا خود بھی شہادت کے لیے کافی ہے۔
बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और राह खुदा से मना कर दिया वो गुमराही में बहुत दूर तक चले गए हैं। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार करने के बाद जुल्म किया है खुदा इन्हें हरगिज़ माफ नहीं कर सकता और ना इन्हें किसी रास्ते की हिदायत कर सकता है सिवाय जहन्नुम के रास्ते के, जहां इनको हमेशा हमेशा रहना है, और ये खुदा के लिए बहुत आसान है। ए इंसानों, तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से हक लेकर रसूल आ गया है, लिहाजा इस पर ईमान ले आओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और अगर तुमने कुफ्र इख्तियार किया तो याद रखो कि जमीन और आसमान की कुल कायनात खुदा के लिए है और वही इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है। अहले किताब, अपने दीन में हद से तजावुज ना करो और खुदा के बारे में हक के अलावा कुछ ना कहो। मसीह ईसा बिन मरियम सिर्फ अल्लाह के रसूल और इसका कलिमा है जिसे मरियम की तरफ अलका किया गया है और वो उसकी तरफ से एक रूह है। लिहाजा खुदा और मुरसलीन पर ईमान ले आओ और खबरदार तीन का नाम भी ना लो, इससे बाज आ जाओ कि इसी में भलाई है। अल्लाह फकत खुदाए वाहिद है और वो इस बात से मुनज़्ज़ह है कि उसका कोई बेटा हो। जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब उसी का है और वो किफालत और वकालत के लिए काफी है। ना मसीह को इस बात से इनकार है कि वो बंदा खुदा है और ना मलाइका मुकर्रबीन को उसकी बंदगी से कोई इनकार है, और जो भी उसकी बंदगी से इनकार और इस्तकबार करेगा तो अल्लाह सबको अपनी बारगाह में महशूर करेगा। फिर जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमाल किए इन्हें मुकम्मल अज्र देगा और अपने फजल करम से इजाफा भी कर देगा। और जिन लोगों ने इनकार और तकब्बुर से काम लिया है इन पर दर्दनाक अजाब करेगा और इन्हें खुदा के अलावा न कोई सरपरस्त मिलेगा और ना मददगार। ए इंसानों, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बुरहान आ चुका है और हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर भी नाजिल कर दिया है। बस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उससे वाबस्ता हुए इन्हें वो अपनी रहमत और फजल में दाखिल कर लेगा और सीधे रास्ते की हिदायत कर देगा। पैगंबर, ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतवा दरियाफ्त करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि कलाला के बारे में कि खुदा खुद ये हुक्म बयान करता है कि अगर कोई शख्स मर जाए और उसकी औलाद ना हो और सिर्फ बहन वारिस हो तो इसे तरका का निस्फ मिलेगा, और इसी तरह अगर बहन मर जाए और उसकी औलाद ना हो तो भाई इसका वारिस होगा। फिर अगर वारिस दो बहनें हैं तो इन्हें तरके का 2/3 मिलेगा, और अगर भाई बहन दोनों हैं तो मर्द के लिए औरत का दोहरा हिस्सा होगा। खुदा ये सब वाज़ेह कर रहा है ताकि तुम बहकने ना पाओ, और खुदा हर शय का खूब जानने वाला है। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ईमान वालों, अपने अहद व पैमान और मामलात की पाबंदी करो। तुम्हारे लिए तमाम चौपाए हलाल कर दिए गए हैं अलावा इनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जा रहे हैं, मगर हालत एहराम में शिकार को हलाल मत समझ लेना। बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। ईमान वालों, खबरदार, अल्लाह की निशानियों की हुर्मत को जाया ना करना और ना मोहतरम महीने, कुर्बानी के जानवर और जिन जानवरों के गले में पट्टे बांध दिए गए हैं, और जो लोग खाना खुदा का इरादा करने वाले हैं और फर्ज परवरदिगार और रिज़ाए इलाही के तलबगार हैं, इनकी हुर्मत की खिलाफ वर्जी करना। और जब एहराम खत्म हो जाए तो शिकार करो, और खबरदार, किसी कौम की अदावत फकत इस बात पर के उसने तुम्हें मस्जिदुल हराम से रोक दिया है तुम्हें जुल्म पर आमादा ना कर दे। नेकी और तकवा पर एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ताद्दी पर आपस में ताउन ना करना, और अल्लाह से डरते रहना कि उसका अजाब बहुत सख्त है। तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया गया है मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और जो जानवर गैर खुदा के नाम पर ज़िबाह किया जाए, और मुनखनका और मौकूजा और मुतरदिया और नतीहा, और जिसको दरिंदा खा जाए, मगर यह कि तुम खुद ज़िबाह कर लो, और जो निसाब पर ज़िबाह किया जाए और जिसकी तीरों के जरिए कुरानदाजी करो, यह सब फस्क है। और कुफ्फार तुम्हारे दीन से मायूस हो गए हैं, लिहाजा तुम इनसे न डरो और मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया है और अपनी नेमतों को तमाम कर दिया है, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंदीदा बना दिया है। लिहाजा जो शख्स भूख में मजबूर हो जाए और गुनाह की तरफ माइल ना हो तो खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। पैगंबर,
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ये तुमसे सवाल करते हैं कि इनके लिए क्या हलाल किया गया है, तो कह दीजिए कि तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल हैं, और जो कुछ तुमने शिकारी कुत्तों को सिखा रखा है और खुदाई तालीम में से कुछ इनके हवाले कर दिया है, तो जो कुछ वो पकड़ कर लाएं इसे खा लो और इस पर नाम खुदा जरूर लो, और अल्लाह से डरो कि वो बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। आज तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गई हैं, और अहले किताब का ताम भी तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा ताम इनके लिए हलाल है। और अहले ईमान की आजाद और पाक दामन औरतें या इनकी आजाद औरतें जिनको तुमसे पहले किताब दी गई है तुम्हारे लिए हलाल है, बशर्ते कि तुम इनकी उजरत दे दो पाकीज़गी के साथ, ना खुल्लम खुल्ला जिना की उजरत के तौर पर और ना पोशीदा तौर पर दोस्ती के अंदाज से। और जो भी ईमान से इनकार करेगा इसके अमाल यकीनन बर्बाद हो जाएंगे और वो आखिरत में घाटा उठाने वालों में होगा। ईमान वालों, जब नमाज के लिए उठो तो पहले अपने चेहरों को और कोहनियों तक अपने हाथों को धो और अपने सर और गिट्टे तक पैरों का मसा करो, और अगर जनाबत की हालत में हो तो गुस्ल करो, और अगर मरीज हो या सफर के आलम में हो या पाखाना वगैरह निकल आया है या औरतों को बाहम लम्स किया है और पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। इस तरह के अपने चेहरे और हाथों का मसा कर लो कि खुदा तुम्हारे लिए किसी तरह की जहमत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाको पाकीज़ा बना दे और तुम पर अपनी नेमत को तमाम कर दे। शायद तुम इस तरह उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत और उसके इस अहद को याद करो जो उसने तुमसे लिया है, जब तुमने ये कहा कि हमने सुन लिया और अतात की। और खबरदार, अल्लाह से डरते रहो कि अल्लाह दिल के राजों का भी जानने वाला है। ईमान वालों, खुदा के लिए क़याम करने वाले और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बनो, और खबरदार, किसी कौम की अदावत तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे कि इंसाफ को तर्क कर दो। इंसाफ करो कि यही तकवा से करीब तर है, और अल्लाह से डरते रहो कि अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। अल्लाह ने साहिबान ईमान और अमल सालेह वालों से वादा किया है कि इनके लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम है, और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और हमारी आयात की तकज़ीब की वो सब के सब जहन्नुमी हैं। ईमान वालों, अपने ऊपर अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि जब एक कौम ने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाने का इरादा किया तो खुदा ने उनके हाथों को तुम तक पहुंचने से रोक दिया। और अल्लाह से डरते रहो कि साहिबान ईमान अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं, और बेशक अल्लाह ने बनी इस्राइल से अहद लिया और हमने इनमें से 12 नकीब भेजे, और खुदा ने यह भी कह दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं अगर तुमने नमाज कायम की और ज़कात अदा की और हमारे रसूलों पर ईमान ले आए और इनकी मदद की और खुदा की राह में कर्ज़े हसना दिया, तो हम यकीनन तुम्हारी बुराइयों से दरगुजर करेंगे और तुम्हें उन बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। फिर जो इसके बाद कुफ्र करेगा तो वो बहुत बुरे रास्ते की तरफ बहक गया है। फिर उनकी अहद शिकने की बिना पर हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त बना दिया। वो हमारे कलिमात को इनकी जगह से हटा देते हैं और उन्होंने हमारी याद दहानी का अक्सर हिस्सा फरामोश कर दिया है, और तुम इनकी खयानतों पर बराबर मुत्तला होते रहोगे अलावा चंद अफराद के। लिहाजा इनसे दरगुजर करो और इनकी तरफ से किनारा कशी करो कि अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और जिन लोगों का कहना है कि हम नसरानी हैं, हमने उनसे भी अहद लिया और उन्होंने भी हमारी नसीहत इंजील के एक हिस्से को फरामोश कर दिया, तो हमने बतौर सजा उनके दरमियान अदावत और बुग़्ज़ को क़यामत तक के लिए रास्ता दे दिया, और अनकरीब खुदा उन्हें उन बातों से बाखबर करेगा जो वो अंजाम दे रहे थे। ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारा रसूल आ चुका है जो उनमें से बहुत सी बातों की वजाहत कर रहा है जिनको तुम किताब खुदा में से छुपा रहे थे, और बहुत सी बातों से दरगुजर भी करता है। तुम्हारे पास खुदा की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है जिसके जरिए खुदा अपनी खुशनुदी का इत्तबा करने वालों को सलामती के रास्तों की हिदायत करता है और इन्हें
तारीकियों से निकालकर अपने हुक्म से नूर की तरफ ले आता है और इन्हें सिराते मुस्तकीम की हिदायत करता है। यकीनन वो लोग काफिर हैं जिनका कहना यह है कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि फिर खुदा के मुकाबले में कौन किसी अम्र का साहिब इख्तियार होगा अगर वो मसीह बिन मरियम और इनकी मां सारे अहले जमीन को मार डालना चाहे और अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान और इनके दरमियान की कुल हुकूमत है। वो जिसे चाहता है पैदा करता है और वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। और यहूदियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम अल्लाह के फर्जंद और उसके दोस्त हैं। तो पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि फिर खुदा तुम पर तुम्हारे गुनाहों की बिना पर अजाब क्यों करता है, बल्कि तुम उसकी मखलूकात में से बशर हो और वो जिसको चाहता है बख्श देता है और जिस पर चाहता है अजाब करता है। और उसके लिए जमीन और आसमान और इनके दरमियान की कुल कायनात है और उसी की तरफ सबकी बाज़गश्त है। ए अहले किताब, तुम्हारे पास रसूलों के एक वक्फे के बाद हमारा ये रसूल आया है कि तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई बशीर व नजीर नहीं आया था। तो लो, ये बशीर व नजीर आ गया है और खुदा हर शय पर कादिर है। और उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए कौम, अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो जब उसने तुम में अंबिया करार दिए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो सब कुछ दे दिया जो आलमीन में से किसी को नहीं दिया था। और ए कौम, इस अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है और मैदान से उल्टे पांव ना पलट जाओ कि उल्टे खसारे वालों में हो जाओगे। उन लोगों ने कहा कि मूसा, वहां तो जाबिरों की कौम आबाद है और हम उस वक्त तक दाखिल ना होंगे जब तक वो वहां से निकल ना जाएं। फिर अगर वो निकल गए तो हम यकीनन दाखिल हो जाएंगे। मगर दो इंसान जिन्हें खुदा का खौफ था और उन पर खुदा ने फजलो करम किया था, उन्होंने कहा कि इनके दरवाजे से दाखिल हो जाओ। अगर तुम दरवाजे में दाखिल हो गए तो यकीनन गालिब आ जाओगे और अल्लाह पर भरोसा करो अगर तुम साहिबान ईमान हो। उन लोगों ने कहा कि मूसा, हम हरगिज वहां दाखिल ना होंगे जब तक वो लोग वहां हैं। आप अपने परवरदिगार के साथ जाकर जंग कीजिए, हम यहां बैठे हुए हैं। मूसा ने कहा, परवरदिगार, मैं सिर्फ अपनी जात और अपने भाई का इख्तियार रखता हूं, लिहाजा हमारे और इस फासिक कौम के दरमियान जुदाई पैदा कर दे। इरशाद हुआ कि अब इन पर 40 साल हराम कर दिए गए हैं कि ये जमीन में चक्कर लगाते रहेंगे, लिहाजा तुम इस फासिक कौम पर अफसोस ना करो। और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आदम के दोनों फर्जंदों का सच्चा किस्सा पढ़कर सुनाइए। जब दोनों ने कुर्बानी दी और एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की ना हुई तो उसने कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो दूसरे ने जवाब दिया, मेरा क्या कसूर है, खुदा सिर्फ साहिबान तकवा के अमाल को कबूल करता है। अगर आप मेरी तरफ कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएंगे भी तो मैं आपकी तरफ हरगिज हाथ ना बढ़ाऊंगा कि मैं आलमीन के पालने वाले खुदा से डरता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे और अपने दोनों के गुनाहों का मरकज बन जाइए और जहन्नुमियों में शामिल हो जाइए कि जालिमीन की यही सजा है। फिर उसके नफ्स ने उसे भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर दिया और वो खसारा वालों में शामिल हो गया। फिर खुदा ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोद रहा था कि उसे दिखलाए कि भाई की लाश को किस तरह छुपाएगा। तो उसने कहा कि अफसोस, मैं इस कौवे के जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश को जमीन में छुपा देता। और इस तरह वो नादमीन और पशेमान लोगों में शामिल हो गया। उसी बिना पर हमने बनी इसराइल पर लिख दिया कि जो शख्स किसी नफ्स को किसी नफ्स के बदले या रूए जमीन में फसाद की सजा के अलावा कत्ल कर डालेगा, इसने गोया सारे इंसानों को कत्ल कर दिया। और जिसने एक नफ्स को जिंदगी दे दी, उसने गोया सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। और बनी इसराइल के पास हमारे रसूल खुली हुई निशानियां लेकर आए
मगर उसके बाद भी उनमें से अक्सर लोग जमीन में ज्यादतियां करने वाले ही रहे। बस खुदा और रसूल से जंग करने वाले और जमीन में फसाद करने वालों की सजा यही है कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए, या इनके हाथ और पैर मुख्तलिफ सिम्त से कता कर दिए जाएं, या इन्हें अर्ज़ वतन से निकाल बाहर किया जाए। ये इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और इनके लिए आखिरत में अज़ाब अजीम है। अलावा इन लोगों के जो तुम्हारे काबू में आने से पहले ही तौबा कर ले तो समझ लो कि खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने का वसीला तलाश करो और उसकी राह में जहाद करो कि शायद इस तरह कामयाब हो जाओ। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, अगर इनके पास सारी जमीन का सरमाया हो और इतना ही और शामिल कर दें कि रोज़ क़यामत के अजाब का बदला हो जाए, तो ये मुआवजा कबूल ना किया जाएगा और इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। ये लोग चाहते हैं जहन्नुम से निकल जाएं, हालांकि ये निकलने वाले नहीं हैं और इनके लिए एक मुस्तकिल अजाब है। चोर मर्द और चोर औरत दोनों के हाथ काट दो कि ये इनके लिए बदला और खुदा की तरफ से एक सजा है, और खुदा साहिब इज्जत भी है और साहिब हिकमत भी है। फिर जुल्म के बाद जो शख्स तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो खुदा उसकी तौबा कबूल कर लेगा कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। क्या तुमको नहीं मालूम कि जमीन और आसमान का मुल्क सिर्फ खुदा ही के लिए है? वो जिस पर चाहता है अजाब करता है और जिसको चाहता है बख्श देता है, और अल्लाह हर शय पर कादिर और मुख्तार है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान का दावा करने वालों में जो लोग कुफ्र की तरफ जल्दबाजी से बढ़ रहे हैं, इनकी हरकत से आप रंजीदा ना हो। ये सिर्फ जबान से ईमान का नाम लेते हैं और इनके दिल मोमिन नहीं हैं। और यहूदियों में से भी बास ऐसे हैं जो झूठी बातें सुनते हैं और दूसरी कौम वाले जो आपके पास हाजिर नहीं हुए इन्हें सुनाते हैं। ये कलिमात को इनकी जगह से हटा देते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर पैगंबर की तरफ से यही दिया जाए तो ले लेना, और अगर ये ना दिया जाए तो परहेज करना। और जिसके फितने के बारे में खुदा इरादा कर ले, इसके बारे में आपका कोई इख्तियार नहीं है। ये वो अफराद हैं जिनके बारे में खुदा ने ये इरादा ही नहीं किया कि जबरदस्ती इनके दिलों को पाक कर देगा। इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी अजाब अजीम है। ये झूठ सुनने वाले और हराम खाने वाले हैं। लिहाजा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकदमा लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार है कि फैसला कर दें या एराज कर लें, कि अगर एराज भी कर लेंगे तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुंचा सकेंगे। लेकिन अगर फैसला ही करें तो इंसाफ के साथ करें कि खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। और ये किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला कराएंगे जबकि इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें हुक्म खुदा भी है, और ये इसके बाद भी मुंह फेर लेते हैं और फिर ईमान लाने वाले नहीं हैं। बेशक हमने तौरात को नाजिल किया है जिसमें हिदायत और नूर है, और इसके जरिए अताअत गुजार अंबिया यहूदियों के लिए फैसला करते हैं और अल्लाह वाले और उलमाए यहूद इस चीज से फैसला करते हैं जिसका किताब खुदा में इनको महाफिज बनाया गया है और जिसके ये गवाह भी हैं। लिहाजा तुम इन लोगों से ना डरो, सिर्फ हमसे डरो, और खबरदार थोड़ी सी कीमत के लिए हमारी आयात का कारोबार ना करना, और जो भी हमारे नाजिल किए हुए कानून के मुताबिक फैसला ना करेगा वो सब काफिर शुमार होंगे। और हमने तौरात में ये भी लिख दिया है कि जान का बदला जान, और आंख का बदला आंख, और नाक का बदला नाक, और कान का बदला कान, और दांत का बदला दांत है, और जख्मों का भी बदला लिया जाएगा। अब अगर कोई शख्स माफ कर दे तो ये उसके गुनाहों का भी कफारा हो जाएगा, और जो भी खुदा के नाजिल करदा हुक्म के खिलाफ फैसला करेगा वो जालिमों में शुमार होगा। और हमने इन्हीं अंबिया के नक्श कदम पर ईसा बिन मरियम को चला दिया जो अपने सामने की तौरात की तस्दीक करने वाले थे, और हमने
انہیں انجیل دے دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ اپنے سامنے کی توریت کی تصدیق کرنے والی اور ہدایت تھی، اور صاحبان تقویٰ کے لیے سامان نصیحت تھی۔ اہل انجیل کو چاہیے کہ خدا نے جو حکم نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، کہ جو بھی تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہ فاسقوں میں شمار ہوگا۔ اور اے پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی ہے جو اپنے پہلے کی توریت اور انجیل کی مصدق اور محافظ ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ کریں، اور خدا کی طرف سے آئے ہوئے حق سے الگ ہو کر ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ ہم نے سب کے لیے الگ الگ شریعت اور راستہ مقرر کر دیا ہے، اور خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ اپنے دیے ہوئے قانون سے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، لہذا تم سب نیکیوں کی طرف سبقت کرو کہ تم سب کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے، وہاں وہ تمہیں ان تمام باتوں سے باخبر کرے گا جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اور پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں، اور اس بات سے بچتے رہیں کہ یہ بعض احکام الہی سے منحرف کر دیں۔ پھر اگر یہ خود منحرف ہو جائیں تو یاد رکھیں کہ خدا ان کو ان کے بعض گناہوں کی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور انسانوں کی اکثریت فاسق اور دائرہ اطاعت سے خارج ہے۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، جبکہ صاحبان یقین کے لیے اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے کوئی انہیں دوست بنائے گا تو انہی میں شمار ہو جائے گا۔ بے شک اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں گردش زمانہ کا خوف ہے، پس عنقریب خدا اپنی طرف سے فتح یا کوئی دوسرا امر لے آئے گا تو یہ اپنے دل کے چھپائے ہوئے راز پر پشیمان ہو جائیں گے، اور صاحبان ایمان کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نام خدا پر سخت ترین قسمیں کھائی تھیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اب ان کے اعمال برباد ہو گئے اور یہ خسارے والے ہو گئے۔ ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا تو عنقریب خدا ایک قوم کو لے آئے گا جو اس کی محبوب اور اس سے محبت کرنے والی، مومنین کے سامنے خاکسار اور کفار کے سامنے صاحب عزت، راہ خدا میں جہاد کرنے والی اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والی ہوگی۔ یہ فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب وسعت اور علیم و دانا بھی ہے۔ ایمان والو، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو بھی اللہ، رسول اور صاحبان ایمان کو اپنا سرپرست بنائے گا تو اللہ ہی کی جماعت غالب آنے والی ہے۔ ایمان والو، خبردار، اہل کتاب میں جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تماشا بنا لیا ہے، اور دیگر کفار کو بھی اپنا ولی اور سرپرست نہ بنانا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بالکل بے عقل قوم ہے۔ پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے صرف اس بات پر ناراض ہو کہ ہم اللہ اور اس نے جو کچھ ہماری طرف یا ہم سے پہلے نازل کیا ہے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمہاری اکثریت فاسق اور نافرمان ہے؟ کیا ہم تم کو خدا کے نزدیک ایک منزل کے اعتبار سے اس سے بدتر عیب کی خبر دے کہ جس پر خدا نے لعنت اور غضب نازل کیا ہے، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا ہے، اور جس نے بھی طاغوت کی عبادت کی ہے وہ جگہ کے اعتبار سے بدترین اور سیدھے راستے سے انتہائی بہکا ہوا ہے۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر ہی کے ساتھ داخل ہوئے ہیں اور اسی کو لے کر نکلے ہیں، اور خدا ان سب باتوں کو خوب جانتا ہے
जिन को ये छुपाए हुए हैं। इनमें से बहुत सौ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि वो गुनाह और जुल्म और हराम खोरी में दौड़ते फिरते हैं और ये बदतरीन काम अंजाम दे रहे हैं। आखिर इन्हें अल्लाह वाले और उलमा इनके झूठ बोलने और हराम खाने से क्यों नहीं मना करते? ये यकीनन बहुत बुरा कर रहे हैं। और यहूदी कहते हैं कि खुदा के हाथ बंधे हुए हैं, जबकि असल में इन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं और ये अपने कौल की बिना पर मलऊन है। और खुदा के दोनों हाथ खुले हुए हैं और वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है। और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुआ है, इसका इनकार इनमें से बहुत सौ के कुफ्र और इनकी सरकशी को और बढ़ा देगा। और हमने इनके दरमियान कयामत तक के लिए अदावत और बुग़्ज़ पैदा कर दिया है कि जब भी जंग की आग भड़काना चाहेंगे खुदा बुझा देगा। और ये जमीन में फसाद की कोशिश कर रहे हैं और खुदा मुफसिदों को दोस्त नहीं रखता। और अगर अहले किताब ईमान ले आते और हमसे डरते रहते तो हम उनके गुनाहों को माफ कर देते और उन्हें नेमतों के बागात में दाखिल कर देते। और अगर ये लोग तौरात और इंजील और जो कुछ उनकी तरफ परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है सबको कायम करते तो अपने ऊपर और कदमों के नीचे से रिज़्क़ खुदा हासिल करते। इनमें से एक कौम मयाना रो है और ज्यादा हिस्सा लोग बदतरीन आमाल अंजाम दे रहे हैं। ए पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हुक्म को पहुंचा दें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है। और अगर आपने ये ना किया तो गोया उसके पैगाम को नहीं पहुंचाया। और खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के शर से महफूज रखेगा और अल्लाह काफिरों की हिदायत नहीं करता है। कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम्हारा कोई मजहब नहीं है जब तक तौरात और इंजील और जो कुछ परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुआ है इसे कायम ना कर लो। और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुआ है वो इनकी कसीर तादाद की सरकशी और कुफ्र में इजाफा कर देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के हाल पर रंजीदा ना हो। बेशक जो लोग साहिब ईमान हैं या यहूदी और सितारा परस्त और ईसाई हैं, इनमें से जो भी अल्लाह और आखिरत पर वाकई ईमान लाएगा और अमल सालेह करेगा, इसके लिए न खौफ है और न उसे हुज़्न होगा। हमने बनी इस्राइल से अहद लिया है और इनकी तरफ बहुत से रसूल भेजे हैं, लेकिन जब इनके पास कोई रसूल इनकी ख्वाहिश के खिलाफ हुक्म ले आया तो उन्होंने एक जमात की तकज़ीब की और एक ग्रोह को कत्ल कर देते हैं। और इन लोगों ने ख्याल किया कि इसमें कोई खराबी ना होगी, इसीलिए ये हकाइक से अंधे और बहरे हो गए हैं। इसके बाद खुदा ने इनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन फिर भी अक्सरियत अंधी बहरी हो गई और खुदा इनके तमाम आमाल पर गहरी निगाह रखता है। यकीनन वो लोग काफिर हैं जिनका कहना है कि अल्लाह ही मसीह बिन मरियम है, जबकि खुद मसीह का कहना है कि ए बनी इसराइल, अपने और मेरे परवरदिगार की इबादत करो। जो कोई उसका शरीक करार देगा उस पर खुदा ने जन्नत हराम कर दी है और उसका अंजाम जहन्नुम है और जालिमों का कोई मददगार ना होगा। यकीनन वो लोग काफिर हैं जिनका कहना यह है कि अल्लाह तीन में का तीसरा है, हालांकि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। और अगर ये लोग अपने कौल से बाज ना आएंगे तो इनमें से कुफ्र इख्तियार करने वालों पर दर्दनाक अजाब नाजिल हो जाएगा। ये लोग खुदा की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते, जबकि अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। मसीह बिन मरियम कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे रसूल हैं जिनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। और इनकी माँ सिद्दीक़ा थी और वो दोनों खाना खाया करते थे। देखो हम अपनी निशानियों को किस तरह वाज़े करके बयान करते हैं और फिर देखो कि ये लोग किस तरह बहके जा रहे हैं। पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हो जो तुम्हारे लिए नफा और नुकसान के मालिक भी नहीं है और खुदा सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक गुलू से काम ना लो और उस कौम की ख्वाहिशात का इत्तिबा ना करो
जो पहले से गुमराह हो चुकी है और बहुत से लोगों को गुमराह भी कर चुकी है और सीधे रास्ते से बहक चुकी है। बनी इसराइल में से कुफ्र इख्तियार करने वालों पर जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की जबान से लानत की जा चुकी है कि उन लोगों ने नाफरमानी की और हमेशा हद से तजावुज किया करते थे। उन्होंने जो बुराई भी की है इससे बाज नहीं आते थे और बदतरीन काम किया करते थे। इनमें से अक्सर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि ये कुफ्फार से दोस्ती करते हैं। उन्होंने अपने नफ्स के लिए जो सामान पहले से फराम किया है वो बहुत बुरा सामान है जिस पर खुदा इनसे नाराज है और वो अजाब में हमेशा रहने वाले हैं। अगर ये लोग अल्लाह और नबी मूसा और जो कुछ इन पर नाजिल हुआ है सब पर ईमान रखते तो हरगिज कुफ्फार को दोस्त ना बनाते, लेकिन इनमें से बहुत से लोग फासिक और नाफरमान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि साहिबान ईमान से सबसे ज्यादा अदावत रखने वाले यहूदी और मुशरिक हैं और इनकी मोहब्बत से सबसे ज्यादा करीब वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम नसरानी हैं। ये इसलिए है कि इनमें बहुत से कसीस और राहिब पाए जाते हैं और ये मुतकब्बिर और बुराई करने वाले नहीं हैं। और जब इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है तो तुम देखते हो कि इनकी आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं कि उन्होंने हक को पहचान लिया है और कहते हैं कि परवरदिगार हम ईमान ले आए हैं, लिहाजा हमारा नाम भी तस्दीक करने वालों में दर्ज कर ले। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व